بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحرم فوریکس اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے بیسک کورس ویڈیو پارٹ 1 کے ساتھ میں ہوں ابرار حسین۔ رب کریم سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں، خداوند آپ کی زندگی میں ہر پہلو ہر لحاظ سے برکت عطا فرمائے۔ دوستو، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے الحرم فوریکس اکیڈمی کی طرف سے ہر خاص و عام کے لیے ڈسکلیمر ہے کہ اس اکیڈمی میں کسی بھی قسم کا مالی لین دین نہیں کیا جاتا۔ So our institution or any of its responsible authority do not conduct financial transactions or manage accounts. So our institution or any of its responsible person or authorities are not responsible for any kind of transaction. And in a forward word, I want to say that مجھے فوریکس میں کم و بیش 6 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں سے سیکھا اور ہر دور میں یہ محسوس کیا کہ اس شعبے میں مزید بہتری کی گنجائش ہے، سیم لائک ان آور ایجوکیشنل سسٹم۔ اسی سوچ کے پیش نظر اس ادارے کا قیام کیا گیا ہے جس میں غیر روایتی، آسان اور مفصل انداز میں لوگوں کا رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ ناؤ لیٹس اسٹارٹ اوور ٹوڈیز ٹاپک۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے انٹروڈکشن ٹو فوریکس۔ فوریکس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں، اس کی ٹائم لائن، اس کی ہسٹری میں جانچ لیں گے تو ہمارے لیے بہت ساری چیزوں میں آسانی رہے گی۔ تو لہٰذا شروع کے دنوں میں جہاں سے فوریکس کا آغاز ہوا، اس دور میں جو سسٹم رائج تھا اسے بارٹر سسٹم کہتے ہیں۔ اٹ از اے سسٹم ان وچ وی یوز کموڈیٹیز ایز بیس کرنسی ٹو بائی اینڈ پرچیز انسٹیڈ آف منی بائی میوچل کنسینٹ۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا سسٹم تھا جس میں بطور زر اشیاء کو استعمال کیا جاتا تھا۔ یعنی یہ ہے کہ جو بھی شخص خرید و فروخت کے لیے بازار جاتا تھا تو کیونکہ وہاں پہ کوئی ایک سٹینڈرڈ تو کوئی اس مارکیٹ میں تھے نہیں، تو جس بندے کی جو پروڈکٹ ہوتی تھی، جو چیز اس کے پاس اویلیبل ہوتی تھی، وہ مارکیٹ میں اسے سیل کرنے کے لیے لے جاتا اور دوسرا بندہ جو ہے اس سے کسی اور دوسری چیز کے بدلے اس چیز کو خرید لیتا۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص کے پاس مچھلی ہے تو وہ دال چاہتا ہے تو مچھلی وہ بازار میں لے جاتا اور دوسرے شخص سے اس کے بدلے دال لے لیتا۔ تو اس سسٹم میں یہ ایک ابتدائی شکل تھی۔ اس سسٹم میں بہت ساری کمیاں بھی تھیں، بہت ساری خوبیاں بھی تھیں، تو بہت سارے چیزیں ایسی تھیں جو آہستہ آہستہ بینگ دا پیسیج آف ٹائم ڈیولپ ہوئیں۔ تو اس کی جو اہم چیزیں ہیں چیدہ چیدہ ہم ان کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ اس سسٹم میں جو چیزوں کی ذخیرہ اندوزی پاسبل نہیں تھی، یعنی کہ اگر جیسے آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے تو آج آپ کے پاس اسے رکھنا، سیو کرنا بہت آسان ہے۔ اینڈ وائس ورس، اگر ایک بندے کے پاس 1 کروڑ کی پروڈکٹ ہے، گندم ہے یا کوئی بھی اور چیز ہے اجناس میں سے یا کوئی بھی چیز ہے تو سٹاک میں سے، تو اسے سیو کرنا، اس کے لیے جگہ بھی چاہیے، اس کا رینٹ بھی چاہیے، مشکل تھی۔ اور ڈائریکٹ ایکسچینج میں 2 پرسنس کا جو ہے وہ انفارملی وہاں پہ پریزنٹ ہونا ضروری ہوتا تھا۔ وہاں پہ پیسوں کی لین دین نہیں ہوتی تھی، پیسے تو تھے ہی نہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ چیزوں کو موو کرنا آسان نہیں ہوتا تھا، چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں تو آپ آرام سے پیسے یا چیک کی شکل میں پیسے جیب میں ڈال کے کہیں بھی موو کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ اگر آپ کے پاس 5 لاکھ کی کوئی پروڈکٹ ہے، 5 لاکھ کے کوئی جوتے ہیں یا کوئی بھی پروڈکٹ ہے، تو اسے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا آپ کے لیے بنسبت مشکل ہوگا۔ تو یہ بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل ٹریڈ ہوتی تھی اور اس میں میوچل کنسینٹ کے ساتھ یہ ساری ہوتی تھی۔ تو بہرحال یہ سسٹم آہستہ آہستہ بینگ دا پیسیج آف ٹائم انسانی ارتقاء جیسے جیسے ڈیولپ کیا تو اسی طریقے سے ایوولوشن آف منی ہوا۔ تو اس کے بعد نیکسٹ فارم میں ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں گریجولی چینج ہوئیں۔ تو آپ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ہڑپا، موئنجو داڑو یا قدیم تہذیبیں جو ملتی ہیں ان میں کسی دور میں آپ کو پتھروں کے اوزار ملیں گے، پتھروں کے ٹولز ملیں گے جو خرید و فروخت کے لیے یوز ہوتے تھے۔ پھر تھوڑا سا ڈیولپ ہوا تو کوائنز، ڈفرینٹ قسم کے میٹلز کے کوائنز، برتن۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا انسانی معاشرتی زندگی میں تھوڑا سا اور شعور آیا تو اس میں جو چیزیں آئیں جیسے
जवाहरात हैं, उसके बाद जवाहरात के साथ फिर गोल्ड है। तो आप ये देख सकते हैं एवोल्यूशन ऑफ मनी में कि आहिस्ता आहिस्ता जो ज़र की जो शक्लें हैं, जो उसकी फॉर्म है, वो चेंज होती रही। तो मौजूदा दौर में जो हम देखते हैं कि जैसे अभी हमारे पास पेपर मनी है, पेपर मनी में जैसे चेक हो गए, हॉट कैश ख़ास तौर पे जो नकद कैश है वो है, प्लास्टिक मनी जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक मनी जैसे आपका कोई भी बैंक का एप्लीकेशन है, आप उससे बिल पे करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, और उसकी जब लेटेस्ट जो फॉर्म है वो क्रिप्टो करेंसी है। उसकी क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन जो है सबसे मशहूर है। दोस्तों, ये एवोल्यूशन ऑफ मनी था। ये पैसे ने, ज़र ने अपने इर्तिकाई मराहिल जो तय किए और करता करता आज मौजूदा दौर में आपके सामने मौजूद है। तो आज के दौर में जो एक ग्लोबल सिटी बन चुकी है वर्ल्ड, तो उसमें आप इंटरकनेक्टेड हैं। आप फौरी तौर पे जो है, अगर आपके पास पैसे हैं, कोई भी चीज़ आप ख़रीद सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस टाइम लाइन से हमें सीखने को ये चीज़ मिलती है कि पैसे ने, ज़र ने अपनी कदर में, अपनी शनाख्त में एक सफ़र तय किया है अच्छा खासा। अगर आपके पास आज पैसे हैं तो उन पैसों से आप कोई भी चीज़ ख़रीद सकते हैं। आप कोई भी चीज़ जो बाज़ार में बिकने के लिए मौजूद है, आसानी से उस तक रसाई आप हासिल कर सकते हैं। तो इसके बाद अगला जो प्रोसीजर स्टार्ट हुआ फॉरेक्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वन जो हुआ इसमें कि एक डिफरेंट किस्म के मार्केट्स होती हैं। जैसे एक लोकल मार्केट है आपकी, एक नेशनल मार्केट है, फिर एक इंटरनेशनल मार्केट है। तो इन सभी मार्केट्स में हर चीज़ का एक डिफरेंट रेट होता है, हर चीज़ का एक ज़ाब्ता डिफरेंट होता है, चीज़ों का फ़र्क होता है। तो सेम लाइक दैट जब हम इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी चीज़ के हवाले से बात करते हैं तो हमें बहुत सारे कवानीन और ज़वाबित को फॉलो करना पड़ता है, और वो चीज़ों के साथ वक्त के साथ साथ वेरी भी करते हैं, और उनमें अमेंडमेंट भी होती है। तो जब हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट रखना पड़ता है फॉरेन रेमिटेंस के हवाले से, तो फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से, तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो ये फॉरेन एक्सचेंज में आ जाती हैं। तो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज जो है, ये लैटिन ज़बान का लफ्ज़ है, फॉरेन एक्सचेंज इज़ द ट्रेडिंग ऑफ वन करेंसी फॉर अनदर। सिंपल लफ्ज़ों में अगर आप बयान करें तो डिटेल में अगर आप जाएंगे तो इसमें बहुत सारे ममालिक होते हैं जो करेंसीज़ में ट्रेड करते हैं, करेंसीज़ में एक दूसरे को पेमेंट करते हैं। तो दोस्तों, इस डेवलपमेंट में करेंसी को जो एज मिला है, जो इस सफ़र में करेंसी ने जो डेवलप किया है, उसमें एक बहुत सारी चीज़ों को, आपकी मईशत को जो बड़ा बढ़ावा मिला है, ये बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो इसमें फॉरेक्स का बड़ा बुनियादी किरदार है। तो इसमें इंटरनेशनल ट्रेडिंग फैसिलिटेट ईज़ ऑफ ट्रांजैक्शन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, डिटर्मिनेशन एक्सचेंज रेट्स। तो ये एक इसमें ये शोबे हैं, और इन शोबों के अंडर बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी आ जाती हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। किसी भी मुल्क के मईशत को समझने के लिए उसके ज़र की कदर की बड़ी अहमियत होती है। तो यानी अगर आप ज़र के स्टैंडर्ड्स आपके मुल्क के आपने मुतय्यन किए हुए हैं, और आपके मुल्क की जो करेंसी है वो स्टेबल है, ताकतवर है, तो ऑब्वियसली उससे उस मुल्क को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो उस चीज़ को समझने के लिए ज़र की कदर है, पैमाइश है, उन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इससे बहुत सारी चीज़ों को फ़ायदा ये हुआ कि हमें अपनी करेंसी को बेहतर करने के लिए हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हमारी प्रोडक्शन, हमारे बहुत सारे शोबे हैं, उनमें हमने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट हो गया, मैनेजिंग रिस्क हो गया, स्पेकुलेशन होगी। तो फॉरेन एक्सचेंज में जब आप आए हैं, जब ग्लोबल सिटी बनाए, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है तेज़ी से तरक्की हुई। आपको याद होगा कि जब इंटरनेट जो ग्लोबली जब इंटरनेट लॉन्च नहीं हुआ था, तब जो है हर मुल्क की माशी तरक्की, हर शोबे की तरक्की, हर शोबे के काम का तरीक़ाकार एक लिमिटेड था। लेकिन जैसे ही हमारी वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज में चेंज हुई है, तो कनेक्ट हुई एक दूसरे से, तो हर चीज़ में एक बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई। तो बेसिकली फॉरेक्स, अगर आप सिर्फ फॉरेक्स की बात करें तो फॉरेक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज है, तो जिसमें हम सिंपली ट्रेड करते हैं।
किसी एक मुल्क की करेंसी को बाय करते हैं या किसी एक मुल्क की करेंसी को सेल करते हैं। इसकी छोटी सी मिसाल से मैं आपको वाज़ह करूँगा कि अगर आप किसी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे आपको उस मुल्क की करेंसी की ज़रूरत होगी। आप कहीं से भी अगर कनाडा जाते हैं तो आप अपने मुल्क की करेंसी वहाँ पे लोकली यूज़ नहीं कर सकते, आपको वहाँ पे कैनेडियन डॉलर की ज़रूरत होगी। तो वहाँ पे एक्सचेंज का एक रेट होता है जिसमें आप उस मुल्क की करेंसी को ख़रीदते हैं, अपनी करेंसी को बेचकर उस मुल्क की करेंसी को ख़रीदते हैं। तो आपकी करेंसी को ख़रीदने और उस मुल्क की करेंसी को बेचने में उस शख्स के लिए जो उसका डिफरेंस होगा प्रॉफिट का, वो फॉरेक्स है। यही काम हम ऑनलाइन करते हैं। तो ये ग्लोबल विलेज बनने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि ये सिस्टम जो है डिसेंट्रलाइज हुआ। मतलब ये है कि इसमें अख्तियारात की तकसीम हुई। 1995 से पहले ये कुछ मखसूस इदारे, बैंक्स जो हैं वो सिर्फ इसमें काम कर रहे थे, लेकिन 1995 में ये रूल बना तो इसको हर आम व ख़ास के लिए खोला गया, बनाया गया, एक सिस्टम मुतय्यन किया गया जिसमें कोई भी बंदा मार्केट में ख़रीदो फरोख्त कर सकता है इन फॉर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ फॉर्म। मतलब ये है कि जैसे आप गोल्ड में कोई एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो उसका उन्होंने बाज़ाब्ता एक सिस्टम बना दिया। तो इसके बहुत सारे पहलू हैं कि इससे जो है आपको हाई लिवरेज मिलती है। मतलब ये है कि आम बंदा, कोई भी बंदा अगर उसमें मार्केट में एंटर होता है, बहुत बड़ी मार्केट है फॉरेक्स की, अबाउट $7 ट्रिलियन की मार्केट है ये। तो इसमें आपको हर बंदे को हाई लिवरेज ब्रोकर या जो भी इदारे हैं जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वो आपको हाई लिवरेज देते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड की आपको सहूलत है, आप अपने घर बैठे अपने तरीके से अपने टाइम टेबल के मुताबिक काम कर सकते हैं। जब मार्केट का सेशन ओपन हो, मार्केट जब चल रही हो, सैटरडे संडे मार्केट ऑफ होती है, तो इसमें मल्टी ट्रेडिंग ऑप्शंस हैं आपके, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें ये एक हेजिंग रिस्क से मुराद एक किस्म का माशी तौर पे एज मिलता है आपकी, जब आपको पता चलता है कि मेरी वैल्यूएशन, मेरी मनी की या मेरी प्रोडक्ट की ये वैल्यूएशन है, उसका कंपटीशन दीगर ये चीज़ों के साथ कंपटीशन है, तो आपको उसमें बेहतरी की गुंजाइश नज़र आती है। जब आपका कंपेटिटर ही नहीं होगा तो आपको आपकी इस्लाह उस कदर नहीं होगी। तो और हवालों से भी मतलब ये है कि हर लिहाज से ये एक आपको इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का पता लगता है। मरकज़ी बैंक जो होती है किसी भी मुल्क की, वो इन चीज़ों को, ज़र की कदर को देख के, ये इंटरेस्ट रेट, ये डेफिसिट फाइनेंस, फॉरेन रेमिटेंस, ये सारी चीज़ें जो करेंसी की वैल्यूएशन के मुताबिक ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। इसमें फिर आप ऑनलाइन किसी को ट्रांजैक्शन करते हैं तो, और ख़ास तौर पर इसमें मतलब आपको बहुत ज़्यादा मैं ये तो नहीं कहता कि फ्री होता है, समटाइम कुछ इदारे फ्री भी फ्राहम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर में नेशनल लेवल पे आपको मोस्टली लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1995 के बाद हर शख्स के लिए आसानी है, मुश्किल कोई चीज़ नहीं है दोस्तों। जिस चीज़ में हम मेहनत नहीं करते या जिस चीज़ को हम बगैर समझे चल पड़ते हैं तो उसमें हमें ऑब्वियसली मुश्किल होती है। तो समझना बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ को आप समझें, बार बार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस विदाउट थ्योरी इज़ स्टेरिल, थ्योरी विदाउट प्रैक्टिस इज़ ब्लाइंड। मतलब ये है कि आप थ्योरी भी जारी थ्योरेटिकली भी आप अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर करें और प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करें। एक शख्स अगर उसने जहाज़ उड़ाने की सारी तालीम हासिल कर ली है, लेकिन अगर उसने प्रैक्टिकली जहाज़ नहीं उड़ाया तो वो इस काबिल नहीं हो सकता। उसे प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा और उसे थ्योरेटिकली भी हर चीज़ का पता होना चाहिए। तो ये बेसिक और अहम चीज़ें थी। तो इसमें बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। तो मार्केट में बहुत सारी, और इसमें मज़ीद एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ जो मैं समझता हूँ ज़रूरी है। जो लोग समझते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जायज़ नहीं है, हलाल नहीं है, तो मेरी उनसे ये गुजारिश है कि सिंपल आप जो है ना, फिर आप बाटर सिस्टम के तहत चीज़ों का ख़रीदो फरोख्त किया करें, क्योंकि फिर फॉरेक्स अगर हलाल नहीं है तो फिर ये तो सारा पैसे की तजारत है। तो पैसे में फिर आप कोई भी चीज़ अगर ख़रीद रहे हैं या फ़रोख्त कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हैं तो वो भी कागज़ के नोट, तो वो भी फिर जायज़ नहीं हो सकता। दोस्तों, आपके कीमती फ़ीडबैक का
بہت شدت سے مجھے انتظار رہے گا. تو میری کوشش ہوگی کہ آپ کے لیے مزید اچھی سے اچھی اور مزید انفارمیٹیو چیزیں میں بنا کے آپ کو سینڈ کروں. اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ فرمائیے گا. آپ سب کے کمنٹس کا جو ہے میں بہت زیادہ منتظر رہوں گا. اجازت چاہوں گا. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.